گوادر میں معروف پراپرٹی ڈیولپر CPIC نے پہلے پروجیکٹ کی شاندار کامیابی کے بعد چائنا پارک گولف اسٹیٹ کے دوسرے فیز کا پرل آف گوادر کا اعلان کر دیا ہے۔ انتظامیہ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گوادر میں سرمایہ کاری کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ CPIC نے لندن میں نئے فیز کی لانچنگ کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا۔ CPIC کے ڈیوڈ چنگ کا کہنا تھا کہ CPIC گوادر میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اور پرل آف گوادر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انویسٹمنٹ کا بہترین موقع ہے۔ The Pearl of Gawada is a cluster within the China Park Golf Estates. And what we're offering from the 1st of July is essentially 400 square yard plots. But if a person buys a 400 square yard plot, they get a 125 square yard plot for free. The prices start from $29,990. The difference, obviously, we're offering a larger plot with the options to have a basement or roof terrace. CPIC کے سیلز ڈائریکٹر فیصل جاوید کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پرل آف گوادر میں 6 مرلے کے پلاٹ 29,000 پاؤنڈ میں دستیاب ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آسانی کے لیے 24 آسان اقساط پر بغیر سود کے پلاٹ خریدا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 16 مرلے کے پلاٹ پر 5 مرلے کا پلاٹ بالکل فری دیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو نیا پروجیکٹ ہے پرل گوادر، یہ چائنا پارک گولف اسٹیٹ کے اندر ہی لوکیٹڈ ہے۔ اس کے اندر ہم 400 اسکوائر یارڈ جو تقریباً 16 مرلے کا پلاٹ بنتا ہے، یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں 29,000 پاؤنڈ اسٹارٹنگ پرائس میں، جس میں آپ کو 30% ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے اور باقی جو 70% ہے وہ آپ کو 2 ایئرس پیمنٹ پلان پہ دینا ہے۔ اور 2 ایئرس پیمنٹ پلان جو ہے وہ بالکل انٹرسٹ فری ہے، اس میں آپ آسان قسطوں کے ساتھ پے کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری آفر یہ بھی ہے کہ اس میں 125 اسکوائر یارڈ جو تقریباً 5 مرلہ کا پلاٹ بنتا ہے وہ ہم اس میں ایک فری دے رہے ہیں اس 400 اسکوائر یارڈ کے ساتھ۔ اور یہ جو 400 اسکوائر یارڈ کے پلاٹس ہیں یہ مینلی ہمارے گولف کورس کے اوپر ہیں، جس سے میں آپ کو گولف کورس کا ویو ملتا ہے جو 6 ہول گولف کورس ہے، جو اس کا ہمارا سیلنگ پوائنٹ ہے مین، جو ہماری اس میں لوکیشنز ہیں۔ کلائنٹس سروس ایسوسیٹس کے حبیب زیدی کے اس موقع پر کہنا تھا کہ پرل آف گوادر میں 1,000 پاؤنڈ اور $1,000 ایڈوانس سے پلاٹ کی بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ میرے خیال سے دبئی سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ بہت ہے۔ اس میں چائنا نے 62 بلین، آپ نے جیسے سنا کہ $62 بلین کی انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر لون دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو سعودیہ جو ہے وہ نیکسٹ پارٹنر ہے ان کا، آئل ریفائنری، آئل سٹی میں منی سٹی بنا رہا ہے وہاں پہ۔ پھر قطر آج کل جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے وہاں جا رہا ہے۔ انٹرنیشنلی تقریباً تمام لوگوں کی جو نظر ہے وہ گوادر پہ ہے، اور گوادر بہت میرے حساب سے بہت شوٹ اپ کرے گا، رائز کرے گا بزنس کے حساب سے، پراپرٹی کے حساب سے، انویسٹمنٹ کے حساب سے۔ میرے خیال سے آپ سمجھ لیں کہ 200 300 500 ٹائمز بھی آپ کو ریٹرن مل سکتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہے بالکل را سے اسکریچ سے جو ہے وہ بلڈ ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پرل آف گوادر کی خاص بات گولف کورس ویو ہے، جبکہ CPIC کے تمام پروجیکٹس کی کامیابی کی وجہ سے عوام کو بھرپور اعتماد ہے۔ پریس کانفرنس کے آخر میں پرل آف گوادر کے پلان کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے قانون خالد نواز گھمن اور ابرار شیخ کے اعزاز میں ورلڈ وائڈ سولیسٹر کی جانب سے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر کی لائرز فرمز کے پرنسپلز اور وکلاء نے شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستانی ماہر قانون خالد نواز گھمن اور ابرار شیخ کے اعزاز میں ورلڈ وائڈ سولیسٹر اشفاق جاوید اور ان کے ساتھیوں نے ایک باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سبقت اللہ قادری تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ وکلاء کو اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اور اس قسم کے پروگرامز سے وکلاء کو آپس میں مل بیٹھنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے تمام وکلاء کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ وکلاء برادری کی شاندار بیٹھک تھی، جس میں وکلاء نے مل بیٹھ کر کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ آج ہمارے بھائیوں نے باربیکیو کی محفل سجائی ہے، اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سمر کی آمد ہے اور ہم سب بھائی مل بیٹھ کے وکلاء برادری والے اپنے دکھ درد بانٹ سکیں اور سمر کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ فارمل سے گیٹ ٹوگیدر تھی، اپنے لیگل فیلوشپس کے ساتھ ایک چھوٹا سا باربیکیو ارینج کیا تھا، جہاں سے سب نے ایک شرکت کی اور برٹش ویدر کو بھی انجوائے کیا، جو کہ آج بہت اچھا تھا۔ تو اور کوئی اس کا پولیٹیکل ایجنڈا کوئی نہیں تھا، صرف مقصد تھا کہ سب مل جل کر بیٹھ کر ایک چیف گیسٹ
सीनियर बैरिस्टर सबकतुल्लाह कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे कहने पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें इमिग्रेशन और क्रिमिनल लॉ के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आज के जो मेज़बान हैं अशफाक जावेद साहब, जिन्होंने यहाँ पे ये बारबेक्यू का इनेकाद किया, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 3 और हमारे प्रोफेशनल गेस्ट को यहाँ पे मदऊ किया, जिनकी कंपनी में बैठने का मौका मिला। इसके अलावा बहुत सारे मुतअद्दिद डिफरेंट फर्म्स के प्रिंसिपल सोलिसिटर्स आज यहाँ पे मौजूद हैं, और ये ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सोशलाइजिंग के इवेंट्स मुनक्किद होते रहने चाहिए। स्पेशली लॉयर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह का टाइम निकालना। तो अल्टीमेटली मैं मशकूर हूँ आज के मेज़बान का। डिफरेंट किस्म का इवेंट है जो सोशलाइजिंग के साथ साथ CPD भी है। इसमें सबकतुल्लाह कादरी साहब ने स्पीच डिलीवर की है, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी मुनक्किद किया जाए। थैंक यू। आखिर में तकरीब के मेज़बान मोहम्मद अशफाक जावेद ने मुबीन चौधरी, खालिद नवाज, इब्रार शेख, मुबारक मोहसिन, मोहम्मद आजम, अकरम अब्बास, दीगर शुरका का शुक्रिया अदा किया। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। स्पेन की कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। तफसीलात जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद से। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्पेन के कई इलाकों में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिससे अब तक 3 अमवात भी वाक़ हो चुकी हैं, जबकि कई अफराद हीट स्ट्रोक के बायस अस्पतालों में जा पहुंचे हैं। गर्मी की शदीद लहर ने मामूलात जिंदगी भी मुतासिर किए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक 10 एकड़ से जायद रकबे पर खड़े जंगलात जलकर राख हो गए हैं। मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये शदीद लहर आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान है। आइंदा 2 से 3 रोज में टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा। लोगों को हिदायत जारी की गई है कि वो ठंडे मशरूबात और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और दोपहर के वक्त गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। बच्चे और बूढ़े खास तौर पर इन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। कातालूनिया, मैड्रिड, नवारा, ला रियोजा और अरागोन के इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ठंडे ठार मौसमों के आदी यूरोपियन अफराद को इस शदीद गर्मी की लहर ने चकरा कर रख दिया है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के चेयरमैन नवीद खान और सदर अरब गिल ने ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट का दौरा किया और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातों में मुतालबा किया कि PTM के यूरोप में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट वाजिद खान भी मौजूद थे। तफसीलात के लिए देखते हैं ब्रसेल्स से डॉक्टर मोहम्मद कामरान की यह रिपोर्ट। पश्तून ऑर्गेनाइजेशन के यूरोप के चेयरमैन नवीद खान, सदर अरब गुल और कतर से आए मेहमान और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन कतर के सदर अशफाक अहमद ने यूरोपियन पार्लियामेंट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने साबिक रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट वाजिद खान से भी मुलाकात की। पश्तून ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द ने वाजिद खान की यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीरियों के लिए दी गई खिदमात को सराहा और कहा कि पाकिस्तान के बेटे पाकिस्तान और कश्मीर के लिए काम करते रहेंगे। मसला कश्मीर उजागर करने पर उन्हें वाजिद खान पर फख्र है। इन्होंने जो पीरियड इधर गुजारा है, जो पाकिस्तान के लिए खिदमत की है, जो कश्मीरी कम्युनिटी के खिदमत की है और जो पाकिस्तानी एज ए नेशन इसने पाकिस्तान का फ़र्ज अदा किया है और इसको पाकिस्तान का इम्तियाज़ दिया गया है, तो हम इस पर फख्र महसूस करते हैं और आज हम इसको अलविदाई मुलाकात के लिए आए हैं। तो हम सब कमेटी की तरफ से माजिद खान को सलाम। पश्तून ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द ने यूरोपीय पार्लियामेंट में नो मुंतखब अरकान पार्लियामेंट जॉन हॉवर्ट MEP, मैडम जूली वॉट MEP, साबिक नायब सदर यूरोपीय पार्लियामेंट और मौजूदा MEP मासिमो कस्तार्डो और सिमन सोल्शे से भी मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप नवीद खान और उनके वफ्द में शामिल अफराद ने मुतालबा किया कि यूरोप में PTM का दाखिला बंद किया जाए, क्योंकि ये लोग बदअमनी और इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं। पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के खिलाफ काम करने वालों का वो हर जगह पीछा करेंगे। वफ्द ने नो मुंतखब मेंबरान और पाकिस्तान के दोस्तों को जीत पर मुबारकबाद पेश की और मिलकर चलने का अहद किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सिख कम्युनिटी के वफ़द ने पाकिस्तानी कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी से मुलाकात की और करतारपुर बॉर्डर खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कौंसल जनरल ने सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान के वीज़ों के हवाले से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखना।
बार्सिलोना में मुकीम सिख कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद के एक वफ्द ने कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी से मुलाकात की। इस मौके पर कौंसल खाने में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। सिख कम्युनिटी के अफराद ने करतारपुरा बॉर्डर खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और बाबा गुरु नानक दरबार साहब तक सिख यात्रियों की रसाई और इस राह में दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए जहां हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इकदामात को सराहा, वहीं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान से वीजे के हुसूल से लेकर पाकिस्तान में क़याम और सिक्योरिटी मसाइल समेत तमाम अहम उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की। इमरान अली चौधरी ने सिख बरादरी को हर किस्म की मदद और ताउन का यकीन दिलाया। कौंसल जनरल ने सिख बरादरी को कौंसलेट का दौरा भी कराया और वहाँ काम करने के तरीक़ाकार से आगाह किया। जेडी रिलीजियस प्लेसेस थोड़ियां अपनियां हैं, वो साडी गल बड़ी सोहनी हो रही सी कि दीवारां दी, वो दीवार दे दूसरी तरफ हैं लेकिन वो थोड़ियां जगह ने, उत्थे जाओ। रिलीजियस फ्रीडम सेंट्रल पार्ट है इंसानियत का। थोड़ी देर के लिए स्टेट्स को निकाल देते हैं बीच में से। जिस तरह अगर मेरा होली प्लेस इंडिया में हो, मेरा दिल करेगा कि मैं जाके वहाँ इबादत करूँ और ये मेरा राइट है। इसी तरह हमारी तरफ से जो आपके होली प्लेसेस हैं, एक तो आपका राइट है वहाँ जाना और दूसरा उनको इतना ओपन होना चाहिए, इतना वेलकमिंग होना चाहिए कि आपको जाने में तकलीफ ना हो। ऐलान करना बड़ा आसान है, आप ये कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जगह आपके लिए ओपन नहीं है तो इसका मतलब है ऐलान जो है वो किसी ऐसी चीज पर मबनी है जिसमें हकीकत नहीं है, दोगलापन। इस मौके पर बाबा गुरु नानक की तालीमात का जिक्र भी रहा, जिन्होंने हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे का प्रचार किया। मुकर्रीन का कहना था कि बाबा गुरु नानक ने तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने और इंसानियत का दर्स दिया था। पाकिस्तान के कौंसलेट विच आए सी, जिथे भाई इमरान जी जिहड़े कौंसलर ऑफ जनरल आ पाकिस्तान ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜੋ सच ਦਾ प्रतीक बनो। कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने खिताब करते हुए मजहबी आज़ादी की बात की और कहा कि मुझे खुशी होगी कि बार्सिलोना से सिख यात्रियों का वफ़द पाकिस्तान जाए और अपने मजहबी मकामात की ज़ियारत और इबादत करे। मैं अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए उन्हें जिस हद तक सहूलियात फराहम कर सका ज़रूर करूँगा। सिख कम्यूनिटी ने इस मुलाकात को बड़ा खुशाइन करार दिया और कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी का तहे दिल से धन्यवाद किया। जहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुरा बॉर्डर खोलकर दरवाजे खोल दिए, वहीं कौंसल खाना बार्सिलोना ने दिलों के दरवाजे भी सिख कम्युनिटी के लिए खोल दिए हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। रूस में पाकिस्तानी मुसव्विरा नौरीन साजिद की पेंटिंग्स की नुमाइश हुई, जिसका इफ्तिताह सफ़ीर पाकिस्तान काजी खलीलुल्लाह ने किया। तफसीलात जानते हैं मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। मॉस्को स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी के शोबा इंसानियत में मशहूर पाकिस्तानी मुसव्विरा नौरीन साजिद की बनाई गई पेंटिंग्स की नुमाइश की गई। इस दो रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर काजी खलीलुल्लाह ने किया। नुमाइश का अनवान रूस एक पाकिस्तानी मुसव्विरा की नज़र से था। तकरीब से खिताब करते हुए काजी खलीलुल्लाह ने कहा कि नौरीन साजिद की तख्लीकात की नुमाइश का मौका फराहम करने और खुसूसी ताउन करने पर वो यूनिवर्सिटी रेक्टर के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि ये नुमाइश रूस और पाकिस्तान के शहरों, सकाफती यादगारों और रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाकिस्तानी आर्टिस्ट की गहरी दिलचस्पी की अक्कास है।
मॉस्को स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी के रुकन व्लादिमीरोविच लेबोकोव ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह नुमाइश हमारे लिए न सिर्फ एक दिलचस्प बल्कि पाकिस्तान के सकाफती विरसे को भी ज़ाहिर करती है। इस मौके पर पाकिस्तानी मुसव्वरा नौरीन साजिद का कहना था कि रूस की खूबसूरती ने उन्हें मुतासर किया कि वो पाकिस्तान और रूस की बाहमी दोस्ती और खूबसूरती को कैनवस पर उतारें। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को सराहने और बेपनाह पजीराई पर रूसी फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा किया। नुमाइश में आने वालों ने पाकिस्तानी मुसव्वरा नौरीन साजिद के मुनफरद फनपारों को देखकर खूब दाद दी। शाहिद गुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रशिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिका में भी एशियाई बाशिंदों को क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। घरों में दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखने के प्लान बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब खुले मैदानों में शायकीन क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं। पाक अफगानिस्तान मैच पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में गैर मामूली जोश व खरोश भी पाया जाता है। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, यहाँ तक के खवातीन भी क्रिकेट खेल कर अपना शौक पूरा करती दिखाई देती हैं। दूसरी जानब एशियाई कम्युनिटी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन क्रिकेट मुकाबले का बेचैनी से इंतजार है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि कौमी टीम अपनी कारकर्दगी दिखाए तो अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से हराया जा सकता है। शाहीन अफरीदी, I am sure that this young man is going to be the best bowler in the world. और मोहम्मद आमिर, इन दो जैसे हमारे पास दो और फास्ट बॉलर होने चाहिए। हमारे स्पिनर भी अच्छे हैं, हमारे बैट्समैन भी अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं एक साइकोलॉजिकल क्या उनको हुआ। पहले 3 मैच हार गए, जबकि उनको नहीं हारने चाहिए थे। बहुत एक्साइटेड है इंशाल्लाह ताला कि बस पाकिस्तान अब किसी तरह सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट करा था तो आपको पता है पाकिस्तानी फ़ैन होना कितना मुश्किल होता है समटाइम्स, लेकिन जिस तरह टीम मैच्योरिटी दिखा रही है नॉट ओनली इन बॉलिंग बट बैटिंग एज वेल, हम लोग इंशाल्लाह ताला दुआ करते हैं कि नॉट ओनली सेमीफाइनल में पहुंचेगा बट फाइनल के अंदर जाके भी जीत के आएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं उनकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान न सिर्फ अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहुँचे बल्कि सेमीफाइनल तक पहुँचे, मगर मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक गेम है। हमें गेम को गेम के तौर पर लेना चाहिए। ये ना हो कि हारने की सूरत में टीम को गालियाँ देने शुरू कर दें और जीतने की सूरत में कप्तान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बातें शुरू कर दें। गेम गेम है, क्रिकेट एक सिर्फ गेम है बस। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि हम मैच देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा उम्मीद यही है कि वो अफ़गानिस्तान से भी जीतेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी जीतेगा, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुँचेगा। जिस तरह 92 की जो हिस्ट्री है उसको रिपीट करेगा, और हम सब लोग दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। न्यूजीलैंड से हम मैच जीते और इंशाल्लाह अगले 2 मैचेस भी हम जीते और वर्ल्ड कप में हम फिर से जीते जैसे 92 में हम जीते थे। वी हैव एंड वी विल। 2 और मैचेस है अफ़गानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ, तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे दोनों मैचेस। क्रिकेट के धूम धड़के में शायकीन के अंदाज निराले हैं। अमेरिका में रहकर भी कई लोग कौमी क्रिकेट टीम की किट पहनने में फख्र महसूस करते हैं। अमेरिका के क्रिकेट क्लब्स में शायकीन की तादाद गैर मामूली तौर पर बढ़ गई है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सिल्वर लीज पोलो क्लब बरतानिया में प्रेसिडेंट्स कप का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कंपनी एरोनेक्स डेवलपर्स की टीम, ब्लू ओशियंस गवादर समेत दुनिया भर से 18 टीम्स ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट की मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रेसिडेंट्स कप पोलो में ब्लू ओशंस गवादर टीम जीएम एरोनेक्स हमाद गोस मलिक की क़यादत में मैदान में उतरी और कैम्ब्रिज कंसल्टिंग से मैच 3 के मुकाबले में 6 पॉइंट से अपने नाम किया। ब्लू ओशंस टीम में दीगर नेशनल प्लेयर्स शामिल थे जो कि अगले मैचेस में जीत के लिए पुरअज़्म नजर आए। अमरीका और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी निचात भी गेम देखने पहुंचे, जिन्होंने पोलो को एक बेहतरीन तफरीह और ब्लू ओशंस टीम की कारकर्दगी को सराहा। फातिह टीम के लीडर हमाद मलिक का कहना था कि इस मुकाबले का मकसद पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना और मईशत का फरोग था। उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि अपने अगले मैच भी जीतेंगे और कप अपने नाम करेंगे। ब्लूशन रेजिडेंसी गवादर ने आज खूबसूरत डे है इसको कैश करने के लिए कैम्ब्रिज के साथ एक मैच किया था। बहुत अच्छा खूबसूरत मैच है, फर्स्ट टाइम मैं पोलो देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत बेशुमार बहुत खूबसूरत ग्राउंड बनाया हुआ इन्होंने, फैमिली लाइफ, स्नैक बार, सारी प्रोविजंस हैं, मौसम ज़बरदस्त, इंग्लिश कल्चर का भी टेस्ट मिल रहा है, और जो गेम ओरिजिनली पाकिस्तान हमारे देश में बन चुकी है वो यहाँ पूरी दुनिया हर किस्म के लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो फुली रिकमेंडेड फैमिली हॉलीडे और डे आउट में ये रिकमेंड कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अब वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी खेलों के मैदान आबाद होंगे। मेरा नाम खुरम सुमरा है। हम आज यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पोलो की गेम हो रही है और हमारी टीम ब्लू ओशियन इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें हमाद मलिक साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। वेदर बहुत अच्छा है, फैमिली डे आउट,
बच्चों के साथ आए एंजॉय करने के लिए। हमाद मलिक का मजीद कहना था कि खेल के मैदान आबाद होने से मईशत भी बहाल होती है। इस मौका पर फैमिली समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की बड़ी तादाद मैच देखने पहुंची। अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।